गुलाबी मुखड़ी केवली छजीरे ना किन थुनी केवली छजीरे ना. Let's start the session. The session is called Nepal Narratives, and with us we have two eminent writers from Nepal. Buddhisagar, who's written Kalani Blues. It's a beautiful fiction story. And Sujeev Shakya, who's written this very grand book, Unleashing the Vajra. The name itself is so grand. So let's get down to the basics. Let's start by talking about the title of the book. So, Buddhisagar, I'd like to address this question to you first. आपने अपनी किताब का नाम कर्नाली ब्लूज क्यों रखा, तो और इसमें कर्नाली का क्या रोल है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? सभी देखने वाले जो श्रोता दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम। एक कर्नाली ब्लूज एक कर्नाली क्षेत्र की कहानी है। उसमें कर्नाली एक क्षेत्र है, वो कर्नाली नदी से जुड़े हुए बहुत सारे जिलाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई कहानी है, इसीलिए मैंने कर्नाली रखा। और उस कहानी में एक उदासी है, बारिश भी होती रहती है, छत भी से भी पानी टपकता रहता है, तो एक उदासी है, सभी कैरेक्टर के एक उदासी है। तो इसीलिए जो मुझे लगा कि ये ब्लूज म्यूजिक की तरह है और सुनने में भी बहुत अच्छा लगा है, कर्नाली ब्लूज करके, तो इसीलिए वो नाम रखा। तो सही आपने कहा, उदासी तो है, खैर वो तो आपने सही कहा। Going to Sujeev Shakya, your book, Unleashing the Vajra. Now, this is a very typical question. I'm sure you've been asked this question a million times. What is this Vajra that you're talking about? And considering that you have this label now attached to you, Unleashing Expert, why do you think Vajra has to be unleashed? So that is something I'd like to know from you, Suji. Thank you, Sunita. So great to see you, Buddhisagar. Yes, it's sad we couldn't meet in person. Yeah. So I thought I should just read a paragraph from the introduction of my book that explains the title. So the phrase unleashing the Vajra, I believe, will be used as a metaphor in the future where it will denote the unleashing of Nepal's potential between its two neighbors by hitching its wagon to their fast-moving engines. The Vajra can have different meanings for people of different faiths and beliefs, but for me, it is a symbol that denotes potential. It is also an assurance of a dream that cannot be put down due to the indestructible powers represented by the diamond, the dream of millions of Nepalis across the world. Finally, it is the irresistible force of the thunderbolt that will bring about positive transformation. So I've tried to use Vajra to denote potential, to denote transformation, and as a very formidable force. So that's why the title, and it's a sequel to my earlier book, Unleashing Nepal. Yes. Yeah, that's how you get the name, the Unleashing Expert. It's a beautiful explanation, and yes, that's what a Vajra is supposed to do. So what was the driving force behind writing this book? For me, it was, I had written Unleashing Nepal, and I had just come out of my corporate world and working for about 18 years in one of the largest business groups in Nepal. So I thought investments and management would change, bring about economic transformation. That changed to the fact that as I started running my consulting, be it management and chairing Nepal Economic Forum, I realized that unless you're going to have societal transformation, you're not going to have economic transformation. So the narrative shifts in Unleashing the Vajra into societal transformation. So you could have money, but at the same time, you need to have changes in your value system, how you look at the world, looking at it from a broader sense. So the emergence of the global Nepali. So these are some of the themes I put to weave together in the book. And so as a sequel to Unleashing Nepal. Thank you. That's wonderful to know. And Buddhisagar, अब आप बताएं कि आपकी कहानी के पीछे की कहानी क्या है? आप तो used to write columns and articles, और फिर आपने एक किताब लिखी. तो क्या आपका ट्रिगर रहा इस कहानी को सुनाने के पीछे? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जब आपकी किताब या आपने लिख ली, जो कि आप लगातार लिखते रहे और रोज लिखते रहे, तो उसके बाद जब ये छप गई,
तो क्या आपके मन में कोई ख्याल ऐसा आया कि कोई चीज छूट गई है, कुछ अगर आपको थोड़ा टाइम आप उसको और देते तो शायद कुछ और उसमें ऐड कर पाते, कुछ और शायद निखार कर पाते, कहीं कुछ आपको ऐसा लगा? और कितनी ये किताब की कहानी आपकी खुद की कहानी से जुड़ी हुई है, मतलब कितना इसमें सच है, कितना नहीं है? और ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच एवरीवन वुड लाइक टू नो इज कि ये आपके जो इसमें किरदार हैं, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या सारे के सारे काल्पनिक हैं, या कुछ काल्पनिक हैं और कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिनसे हम मिल सकते हैं कभी? तो इस बारे में बताएं। और एक किताब लिखने के पीछे एक है, मैं पहले तो लेखक से ज्यादा पाठक हूँ, मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया नेपाली साहित्य, मैं पश्चिम क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ की कहानियां पढ़ने की मुझे बहुत सी एक लालसा थी, लेकिन वो मिलती नहीं थी, किसी ने नहीं लिखा था। तो हमारी कोर्स में एक निबंध छपा था, मुझे लगता है 8th स्टैंडर्ड में। उसका नाम था तारानाथ शर्मा नाम के लेखक थे, उन्होंने लिखा था घनघनश्या को कालो चढ़दा। तो पश्चिम की एक यात्रा संस्मरण थी, वहां पे उन्होंने वो डायलॉग में आंचलिक शब्द जो हम उधर सुनते हैं वो उन्होंने प्रयोग किया था। सो हमें बहुत अच्छा लगता था अपनी भाषा जो अपने लोग बोलते हैं वो भाषा सुनने में। सो मैंने उस किस्म की किताबें पढ़ने की कोशिश ज्यादा की, लेकिन वो किताब नहीं मिली। तो टोरी मोरिसन का एक कोट है, जो आप अगर किसी कहानी पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसा कहानी नहीं मिला तो आप खुद ही लिखिए। सो मुझे लगता था कि मैं उधर की कहानियां लिखूं। सो जब मैं अखबार में लिख रहा था, मैंने गद्य जब मैं लिख रहा था अखबार में निबंध, सो पाठकों ने कहा कि आपका गद्य अच्छा है, तो आपको इस गद्य से एक उपन्यास लिखना चाहिए। सो मेरे दिमाग में था। तो एक बार वर्षों पहले मुझे खबर मिला कि मेरे पिताजी बीमार हैं। सो उपन्यास में जो पात्र हॉस्पिटल में पहुंचता है, सिमिलर कुछ मेरी कहानी है वहां पे। सो मैं वहां पे गया और पिता को बेड में दिखा। मुझे लगता था कि मैं काठमांडू से जब जा रहा था, मुझे लगा कि मेरे पिता के सामने डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, उनका ख्याल रख रहे होंगे। मैं मिला नहीं था 5 बरस से। सो मैं वहां गया अकेले, एक बेड में वो अकेले बैठे थे। माँ वो कुछ औषधि के लिए इधर उधर जा रही थी तो नहीं मिली। तो पिताजी अकेले थे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था। मुझे बहुत उससे पिंच हुआ, हो ना, मेरे पिताजी को ऐसे ही अकेले छोड़ देते हैं लोग, डॉक्टर ने नहीं देखा, नर्स ने नहीं देखा, ऐसा फील हुआ। उसके बाद में कुछ समय तो उदास रहा। फिर मैं बाद में देखा कि दूसरे बेड में भी और से लोग ऐसे ही पड़े हैं अकेले, लेकिन उनके लिए मेरे मन में कुछ उदासी नहीं आई। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि मैं मेरे पिताजी को जानता हूँ, वो कितनी लंबी यात्रा तय करके, कितनी सपने देख के, कितनी लंबी यात्रा करके इस बेड पे आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। सो लेकिन दूसरा इंसान जो बीमार है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो उस टाइम मुझे लगा कि जो मेरे दिमाग में उपन्यास लिखने का जो पैशन बोलिए और जुनून, इच्छा, तो वहां पे मुझे वो कहानी मिली जो कर्नाली ब्लूज में जो कहानी कहने की तरीके स्टोरी बैक फोर्थ में जाता है। सो वो कहानी की आइडिया, स्टोरी टेलिंग की आइडिया वहां से आई। सो उसके बाद मैंने वो लिखा। और उपन्यास में क्या होता है कि जब पाठक पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें वो नहीं पहचानते कि एक कैरेक्टर की बैकग्राउंड क्या है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उस कैरेक्टर को पहचानते हैं और अंत में उसके दुख में दुखी होते हैं, उसके सुख में सुख होते हैं। सो इस तरह से किताब का आइडिया आया। सो आपका बहुत लंबा प्रश्न था, उसके बाद क्या था? ये किताब की तो क्या था, मैं भूल गया। नहीं, मैं बस ये जानना चाहिए, आपने एक्चुअली इसका जवाब दे दिया कि आपके लाइफ से ये किताब कैसे जुड़ी हुई है और आपने क्यों लिखी। आपने एक्चुअली बहुत खूबसूरती से इसका जवाब दे दिया है तो कि वो फिर क्या सिमिलैरिटी। हाँ, फिर लोग पूछते हैं ये रियल स्टोरी है, नहीं कुछ तो रियल है इसमें, हाँ, लेकिन ज्यादातर नहीं। और
ये फर्स्ट पर्सन में स्टोरी मैंने कहा है, तो लोग फर्स्ट पर्सन में जब मैं कहता हूँ मैं तो लोग कहता है वो राइटर का ही कहानी है, लेकिन वो नहीं है। मैं वो विश्व बहादुर जिस तरह से चंचल है, मैं उतना चंचल नहीं था। मैं बहुत उदास इंसान सा मैं ज्यादा पड़ता था। मैंने कभी तस्वीरों में, कभी मैंने दूसरों की तस्वीरों में मुझ नहीं बनाई, लेकिन वो कहानी लिखते लिखते वो आ गया, उसका कैरेक्टर बन के वो आ गया। और इसमें से ज्यादातर कुछ मैंने देखे हुए, कुछ महसूस किए हुए, कुछ नजदीक से देखे हुए इंसान भी कैरेक्टर की तरह आए, लेकिन संपूर्ण रूप में आए हैं वो, कुछ पार्ट पार्ट में आए हैं। लेकिन इस उपन्यास का जो परिवेश है, जो सराउंडिंग है, जो जगहों के नाम हैं वो रियल हैं, जो कटासे बाजार रियल है, वो सभी जगह रियल है। तो अभी जो पढ़ते हैं वो जाते हैं, वो कटासे बाजार में वो जाते हैं, जो उसका कटासे बाजार पहले सबसे बड़ा बाजार था, उसके बाद सबने छोड़ दिया, अभी क्या खंडर की तरह लगता है। सो लोग वहां भी जाते हैं देखने के लिए, और मुझे फोन भी करते हैं, किसी के पास मेरा नंबर हो तो करते हैं और पूछते हैं अभी बताओ मैं वहाँ कहाँ। वहाँ जो लाइफस्टाइल है वहाँ की, वो आप कह रहे हैं कि वो रियल है, किरदार भले ही कुछ आपके हाँ काल्पनिक हाँ है, हाँ, वो रियल ये है, आप कह और रहे हैं ना? स्थानों के नाम जो है वो रियल है। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं जानना चाह रही थी। तो नाउ कमिंग बैक टू सुजीव शाक्या, you just mentioned the term global Nepali that you have been using a lot, for a while now. So how do you define this term global Nepali? Global as in physical presence, or global as in the mental outlook? And you have also spoken about change in the psychology of Nepalese population in the last decade or so. So, what is the psychology, according to you, of Nepalese population today, and to what do you attribute this change, Sujeev? I think definitely global is at both levels. It's at physically people moving out, as well as for at the mind space. So, say for instance, even if you take the story of Buddhisagar, his characters, and if you look at Nepal earlier, till about the 70s, 80s, Nepal was Kathmandu and Kathmandu was Nepal. So we didn't realize that, it is a country of 30 million people. There are people west of Karnali. There are people in, sort of the northern hills, eastern Himalayas, and you have people in the Madhya. So we didn't really, so all that started to come out in the 1990s. And especially I look at the trigger of the distribution of passports in district offices in 94, 95. Till then, for any Nepali to go out, you had to really, at some point of time, you had to take the permission of the king, and then you couldn't really, even if you had money, you could go out. So suddenly, after 94, when you could get a passport in 7 days in your district office, somebody in Humla, Jumla, or Boitari, or Saptari, anywhere, they could just go out. So thousands of Nepalis, millions have gone out to work in different lands. So we estimate anything between 5 to 6 million of our 30 million people are outside. So physically, they are now in 180 countries. Earlier for Nepalis, it was to come to India. Like I studied in India. If you had something to do, you came to India. But it opened up the world. And today, people want to go to Australia, you want to go to US, you want to go to UK. It is not, you're not locked within the space of just taking the road and going into India. So that's from a physical standpoint, you have moved a lot into 180 countries. You go to Portugal, has 30,000 Nepalis. You go to Australia, has 150,000. US has 350,000. Even if you go to a country like Libya, you'll find 400, 500 Nepalis. So Poland has 12,000. So that's the sort of, in terms of physically, they're moved. Mentally, what has happened is that connectivity has ensured that you can be sitting in a place in Jumla. You can, once you open your phone, it's the same level of global access to information, knowledge, everything as for somebody in Kathmandu or somebody in some of the other larger cities. So that way your mind has traversed what you eat, what you drink, what you see, what you are going to watch. Entertainment comes to you. You don't have to go to places of entertainment like going to a cinema. And entertainment comes to your device. So that way, that's what I talk about is the global Nepali, and the aspirations of the Nepalis have changed. That's the key thing, as to see Nepalis want to be around the world, and they're very adaptive. In UAE, there are more than 500,000 Nepalis. You see in so many other countries, you see that there's that adaptability, that mindset to say that, okay, I can be in any part of the world, but then I'm still a Nepali.
I would do my dasai, I would do my tihar, I would celebrate my teas. So it's a very interesting way in which this has emerged, and you have become more nationalistic. You have become more understanding your ethnic origin, of your culture, of your festivals, of your societal structure. So that's where I talk about the global Nepali. Yeah. So can we say that this change that you're talking about is kind of, that the Vajra is getting unleashed? It's the unleashing of Yes, Vajra. I do. Yes, I do talk about. So that's where the potential. It's a country of tremendous potential. Let's look at the history. 17th century, when India and China were 70% of global GDP, Nepal was a trade route for somebody from Kashmir to use Nepal to get into trading in Tibet. So Nepal was as an interport. So you are coming back to that situation where you have India and China as the two largest economies coming up in 2040, 2050. And Nepal is unleashing its potential to get to taking advantage of the growth in its neighborhood. So your book has been quite impactful then, I must say. Yes. Yeah. So बुद्धिसागर, आपसे भी इसी तरह का सवाल है कि आपने जो किताब लिखी है कर्नाली ब्लूज, करीब इस किताब को 10-12 साल हो चुके हैं. तो इन 10 साल में, जैसे सुजीव ने कहा कि काफी कुछ बदलाव इन्होंने देखा है लोगों की सोच में, नेपाली लोगों की सोच में. तो आपने किताब लिखने के बाद से लेके अब तक उस जगह में जिसके बारे में आपने लिखा है, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आपने लिखा है, क्या आपने कुछ बदलाव देखा उनकी सोच में? जैसे सुजीव आप कह रहे हैं कि काफी कुछ इस पिछले 10 साल में बदलाव आया है, तो आपने देखा क्या बदलाव देखा? बदलाव तो ज्यादातर आया है. और कर्नाली में बदलाव आने में सड़क का भी ज्यादा महत्व है. अभी सड़क गया है. तो अभी जब मैं रहता था वहाँ कालीकोट में, मैसूर के से जाता था तो 3 दिन 3 रातें लगती थी रास्ते में. हम उतनी लंबी 3 रात को आपको रास्ते में बिताने थे, और चौथी दिन आप वहाँ घर पर पहुंचते थे. उतना लंबा रास्ता था. लेकिन अब जो रास्ता गया है, सड़क गए है, तो गाड़ी में आप 6 और 7 घंटे में पहुंच जाते हैं. तो इससे ज्यादा क्या होता है, जब सड़कें जाती है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जाता है वहाँ. तो चेंज देखा है मैंने. अभी मैं वहां पे था तो आपसे पहले भी मैंने मेंशन किया था कि वो चावल के लाइन के आपको जिला प्रशासन कार्यालय में जाना पड़ता था, और वो आपको कूपन देते थे. और आपको 5 kg का कूपन देते थे, और अपने लिए अपने आप ही जाना पड़ता था. फैमिली का एक मेंबर जाके सब फैमिली का नहीं ला सकता था. सो अपने आप जाता था. मैं भी जाता था, वो लाइन में लगता था, वो धक्कम धक्की. उसके बाद में 5 किलो को कूपन लेके मैं जाता था वो चावल लेने के लिए. सो मुझे लगता था कि ये जिंदगी एक पार्टी है, ये जिंदगी यही है, शायद सभी लोग करते हैं. लेकिन बाद में मैं काठमांडू आया तो लगा दिया तो जिंदगी नहीं है, बड़ा दुख है. तो वो जानने के लिए मुझे काठमांडू आना पड़ा. लेकिन जो वहाँ के इंसान है, अभी जो गाड़ी जा रही है, बसें जा रही है, बसों के साथ क्या होते हैं कि टूरिस्ट भी जाते हैं. तो विभिन्न डिफरेंट देश के इंसान जाते हैं, फर्क भाषा बोलने वाले लोग जाते हैं, अलग अलग इंसान जाते हैं. तो लोग अपने आप में अपडेट हो जाते हैं. सो अपडेट वो मैंने देखी है. और 10 साल में और साहित्य में बड़ा चेंज ये आया है कि 10 साल में पहले एक लेखक किसी समुदाय के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में लिखता था तो दूसरे लोग पढ़ते थे, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ पाते थे. अभी क्या हुआ कि सब लोग पढ़ते हैं अपने बारे में क्या लिखा है, तो वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिक है या नहीं. तो किसी को बुरा लगता है तो उन्हें लगता है कि ये हमारी भी कहानी हो सकती है, ये हम भी किसी पात्र बन सकते हैं, हमारे बारे में भी लोग पढ़ते हैं. तो बहुत से समुदाय के ऐसे भी लेखक आए हैं जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं ऑथेंटिक तरह से. ये भी चेंज आया है. तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी इस पूरी किताब में आपने सुर्खेत को बहुत मेंशन किया है. और जैसे कि जो फैमिली है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, वो मटेरा आए तो सुर्खेत से आए, और वृषा की माँ बार बार जब भी कुछ तकलीफ होती थी तो अपने हस्बैंड से कहती थी सुर्खेत चलो, वहीं चलो. और वो बार बार जो है वो मना करते थे कि नहीं वहां नहीं जाएंगे, तो वो वहां नहीं जाना चाहते थे. अब इनकी जो बेटी थी वृषा की बहन, वो भी शादी करके इवेंचुअली सुर्खेत में सेटल हुई. और एंड में जो स्टोरी के फाइनली जब ये बीमार पड़ते हैं वृषा के पिताजी, और अब वो बिल्कुल ही मतलब मरने के कगार में होते हैं, तो फाइनली वो एग्री करते हैं कि हाँ चलो सुर्खेत. पर वो
पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो ये सुर्खेत का क्या कुछ सिंबोलिज्म है इसके पीछे, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? और इससे पहले क्या बताया, एक काठमांडू भी मैं मेंशन कर दूं कि आपने खुद अपने इंटरव्यूज में काठमांडू के बारे में जो कहा है वो इस तरह से कहा है जैसे कि आप खुश नहीं थे वहां से, मतलब आप उदासीन हुए काठमांडू में। और जो आपका किरदार है, जो मेन कैरेक्टर है, वो तो काठमांडू जाने की जिद में है, वो चाहता है कि वो वहां जाए। तो ये एक थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन सा है आपके खुद की सोच में और आपके किरदार की सोच में। तो ये थोड़ा सा आप उसको समझाएंगे हमारे दर्शकों को? थोड़े आगे सुदीप सर ने भी कहा था कि वो कि नेपाली काठमांडू है, काठमांडू ही नेपाल है। काठमांडू एक तरह के सेक्टर था, जो भी था यहाँ पे था। मैं एक जब मैं कवि बनना चाहता था, मैं रेडियो में कविताएं भेजता था। रेडियो से तो आ जाती थी, लेकिन मुझे छपे हुए कविता देखने की बहुत बड़ी लालसा थी। तो मैं वहां से कविता भेजता था, लेकिन कभी छपता नहीं था। शायद तो छपा भी हो और मैंने पढ़ा नहीं, वो पत्रिका मेरे पास नहीं पहुंची हो। लेकिन जो मुझे लगा कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, छपना चाहता हूँ, लेकिन वहां पे जो माहौल है, वहां पे कोई साहित्य संगीत का किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है। लोगों को बस पैसा कमाना है, सरवाइव करना है। तो मुझे लगा यहीं पे मैं रहूंगा तो मैं ऐसा ही इंसान बन जाऊंगा और एक व्यापारी बन जाऊंगा, कुछ बिजनेस शुरू कर लूंगा। लेकिन मुझे काठमांडू जाना है। जो मैं अखबार में पढ़ता था, लोग लेखक वहां रहते हैं, पाठक वहां रहते हैं, वहां प्रोग्राम होते हैं, तो मैं काठमांडू आ गया। सो बहुत स्ट्रगल था, मेरे फैमिली से कोई काठमांडू में नहीं था, मैं अकेला आया था। सो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ, लेकिन एक ही चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि अभी मैं जो भोग रहा हूँ, अभी जो चीज भी स्ट्रगल हो रही है, बाद में तो वो भी कहानी होगी। सो मैं इसी तरह अपने आप को मोटिवेट करता था। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जाना नहीं चाहता था। जब मुझे लगता था कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा फिर कभी आ नहीं पाऊंगा, और अपना वो जो सपना मैंने दिखाया वो उधर ज्यादा है, तो वो सपना भी मर जाएगा शायद, ऐसा सोच के मैं यहाँ पे रहा। शायद वीर बहादुर के कैरेक्टर में भी वो फीलिंग्स, वो अनुभूति शायद लाल से आई। हाँ तो जुड़ी सुर्खेत है। का बताएं आप मुझे, हाँ, सुर्खेत की मिस्ट्री सुर्खेत में सॉल्व क्या है कीजिए कि आप। इसमें पात्र, जो मेन पात्र हर्ष बहादुर है, उनका उद्गम स्थान वहां पे, उनकी फैमिली वहां थे, पूर्वज वहां पे रहते हैं। सो क्या है, उसके पिता का जो एक ही फिलोसॉफी है कि वो तो व्यापारी हैं, तो वो कहते रहते हैं कि व्यापारी को अपनी जगह पे व्यापार नहीं करना चाहिए। हाँ, वही तो वही क्या मैं होता है जानना कि चाह रही लोग थी कि आते हैं, इसका परेशान हो गए, कुछ मांग लेते हैं, उधार में ले लेते हैं, और आप वापस मांगे तो क्या बोलते हैं, वहां से आपके संबंध में दरार आ जाती है, ऐसे ऐसे। सो और वो वहां से वो निकले थे कुछ बनने के लिए, वो विद्रोह भी करके आए थे बनने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाए थे। शायद उन्हें लगा कि मैं कुछ बन के जाऊं, तो जीवन भर वो घूमते रहे। हाँ, तो मैं वही जानना चाहती हाँ, और सुर्खेत का क्या हुआ कि आप जब कर्णाली पढ़ेंगे, उसमें लगता है कि वो जो पिता, जो फादर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पे वो असफल रहते हैं, उनका हाँ बिजनेस हाँ। असफल हो जाता है। सुर्खेत मेंशन करने की जगह क्या है कि इंसान संसार की जुन सी जो जगह पे जाए, जहाँ जितना संसार का वो राउंड लगा है, लेकिन वो मरने के टाइम अपनी जगह पे आना चाहता है। तो That's beautiful. उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो पूरा हुई, जब सुर्खेत की सीमा में, जब वो सुर्खेत में प्रवेश करते हैं जीप हाँ में, हाँ। तो वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। उनके डेथ से लगता है कि एक असफल आदमी का निधन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो असफल नहीं थे। वो जब वो मरे तो अपनी जगह पर मरे, तो वो बहुत बड़े सफल आदमी थे। सो ज्यादातर लोग अपनी जगह पे मर नहीं पाते। अभी नेपाल में तो इससे भी ज्यादा है कि लोग सपने देख के कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ उनका डेथ हो जाता है, और किसी लाश आ जाती है, किसी की नहीं। तो इसी तरह से वो जुड़ा हुआ है। नहीं, it's beautiful, full circle में जाता है। Sujeev, in this context, I would like to ask you that in Karnali Blues, Buddhisagar talks about this family shifting from one place to another to improve their prospects, but then they are helpless beyond a point, which the entire book is all about that. So how does one resolve such a situation, especially in small villages and towns like Katase and Matera, where they're trying but they are helpless beyond a point? How do you? What is your advice to people in these places? Rather than advice, I think I'm so happy I'm with Buddhisagar. I'm so, a writer I so much adore and admire. I think
I also, after reading Karnali Blues, also lets me reflect on my own life, because I also grew up in a small town in India, in Kalimpong, because my dad was in Tibet, father was trading in Tibet. So there's that constant movement of Nepalis are happening from 6th century AD. It's not that it's recently it's happening. So you come in, you try to find newer opportunities for yourself. And I think that's what people have been able to do. And in my book, I talk about Unleashing Nepal. I talk about or use a word called higration. So you migrate with higher skills, because people are going to migrate. And if you can see the potential, there is potential in Nepal, outside also. So from wherever I began, from sort of trying to struggle like Buddhisagar in my early days, not knowing anyone in Kathmandu, you go in, you start working, and now you start a company that we are working in multiple countries, including having an office in Africa. So if you can dream and you can chase dreams, that can happen. And a lot of Nepalis have been able to do that. People, be it starting companies in US, starting companies in UK, or working. So it's about having dreams, but then at the same time, which I feel, which in Unleashing the Vajra I talk a lot about, is that not to compromise on your value systems, not to take the shortcuts. And if you work hard, the world opens up for you. And there's hardly sort of a case where I've seen thousands and thousands of people do well. So it's about having the right mindset. So the opportunity of roads, the opportunity of internet has opened the world for you. So you have to take that perspective. And I think perhaps the characters in Buddhisagar's book today have, if we read it today, if you rewrite today, would have many more opportunities than they had when he wrote the book. That's how I see it. True. बुद्धिसागर, सुजीव शाक्य ने जैसे कहा, तो अगर आप इनका एडवाइस लेते हैं कि ये कैसे इंटरनेट को यूज करें और कैसे अपने पढ़ाएं, आयाम बढ़ाएं, तो अब अगर आप बिरसा बहादुर की कहानी का सीक्वल लिखते हैं, तो उसका जो फ्यूचर है वो आप क्या बनाएंगे? क्या रहेगा? हमारे बिरसा बहादुर का क्या फ्यूचर रहेगा? हम सुजीव शाक्य की बात को अगर माने तो मानने लायक बातें हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब लोग मान रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। तो बताएं आपके बिरसा बहादुर को क्या फायदा होगा इसका, और वो क्या फ्यूचर बनाएंगे अपना अगली किताब के लिए? तो मेरे 2 नोवेल प्रकाशित, अभी तक 2 नोवेल पब्लिश हुए हैं। तो दोनों नोवेल के पाठक कहते हैं कि इनका सीक्वल लिखिए, आगे की कहानी क्या होती है। तो एक लेखक के रूप में मुझे लगता है कि जो कहानी मैं लिख रहा था उसमें मेरी मनोदशा फर्क थी, मेरी भावनाएं फर्क थी, मेरी वो जुनून था जो लिखने का वो फर्क था। सो वर्षों बाद मैं उसको लिखूंगा तो इस तरह होगा कि एक फूल पत्ते डाल से गिर गया है, उसे फिर जोड़ने की तरह है। सो बिरसा बहादुर की कहानी कर्णाली ब्लूज के रूप में नहीं आएगी। शायद बिरसा बहादुर फर्क तरीके के परिवेश में, फर्क तरीके के कहानी में बिरसा बहादुर की कहानी तो आती रहेंगी, लेकिन वही कर्णाली ब्लूज का सीक्वल और फिर का सीक्वल शायद। चलिए, कर्णाली ब्लूज का नहीं चाहिए, चलिए बताइए बिरसा बहादुर अब क्या करेंगे? बिरसा बहादुर अब वो ग्लोबल नेपाली अगर वो हो गए हों तो अब क्या करेंगे? उनकी सोच में क्या बदलाव आ गया होगा? बदलाव तो बहुत से आए हैं। सो मैं अभी लिख रहा हूँ, मेरा 3rd नोवेल आ रहा है। सो शायद उसमें भी बिरसा बहादुर की कुछ फीलिंग्स तो हैं, उसमें जो चेंजेस हैं, वो कैसे देखता है फिर दुनिया को। I think we had a lovely session of Nepal Narratives, covering both the aspects of Nepal. Buddhisagar's Nepal, which is the grassroots level, interior Nepal, and of course Sujeev Shakya's global Nepal, global Nepali. I think we've done a very reasonably good job of creating a narrative connecting these two. What do you say, Sujeev Shakya, to it? No, thanks. No, it has been a great session, I would say, to bring over what, one of the right, as I said, characters of Karnali Blues. I'm just thinking of that character and, thinking maybe the Shabadu, what would be doing in Dubai or in Qatar or in Australia. Yes, or in, yes. Those are the thoughts that are going on, in a hospital bed in Queens. It's a similar situation. That, things change, but nothing much changes also. You are still, the loneliness is still there in a hospital in Queens or in Canberra, So I was just thinking of that. And I think it's a good narrative. The key, I would say, the takeaway is that Nepal is changing at a faster pace.
but there is not much of this discourse happening outside Nepal. In Nepal, we are also inward looking, and I think sessions like this in festivals and in platforms that has got a viewership beyond Nepal. It's important to talk about the changing narrative around Nepal and to say that how Nepal is changing, and it's a country of 30 million people with half the people under 25. And that changing narrative, I think everybody should learn, know about. There's a lot of deep history, culture, heritage around those narratives. And that's what also excites me as I keep writing and moving from one place to the other. Thank you. Thank you so much, Sujeev Shakya, for such ending this in such positive note, and making it so futuristic. And Buddhisagar, I'm sure अब जो आप लिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो ग्लोबल नेपाली का आएगा ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है. So thank you, Buddhisagar, and thank you, Sujeev Shakya, for this wonderful, wonderful session. आपको भी Nepal धन्यवाद. Narratives. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.